Now moving on to the next problem, which is example 4-13, which is basically a three-dimensional problem. So we are going to use vector formulation in order to solve it. What we have to do is we need to replace these two couples acting on the pipe column by a resultant couple moment. So आपको जिस तरह फिगर में दिखाए गए हैं, दो अदद couples इस pipe assembly पे act कर रहे हैं. One is this couple of 150 Newton forces acting between points A and B, and the second one is a couple of 125 Newton forces acting between points C and D. So we need to find the resultant couple moment as a result of these two couples acting on the pipe assembly. Okay, starting with the vector formulation, जिस तरह अभी हमने इससे पहले बात की है, vector formulation के लिए we are going to calculate the couple moment using the cross product R cross F. So first of all, starting from the couple of 150 Newton forces, what should be R here? Is it going to be RAB or is it going to be RBA? जो मर्जी ले लें सर, बात सेम नहीं होगी सर. ओके, जो मर्जी ले लें. चलें, आप AB की मदद से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, so you are going to define this position vector as RAB. इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप किसका लेंगे? 150 न्यूटन या माइनस 150 न्यूटन फोर्स का? 150. So let us define M1 as the couple moment due to this 150 न्यूटन फोर्स. और जिस तरह अभी बात हुई है, हम सिर्फ एक दफा चेक कर लेते हैं RAB क्रॉस F से इसको डिटरमिन करना, और फिर प्रोबेबली अगर हम रिवर्स ऑर्डर करते हैं तो देखेंगे कि हमारे इस कपल मोमेंट में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, फर्क पड़ना नहीं चाहिए. अच्छा, अगर मैं RAB वेक्टर की बात करूं तो व्हाट इज दिस RAB वेक्टर? कैन यू टेल मी? 0.4. 0.4, बट वेक्टर के लिए तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए ना. 0.4 तो उसका मैग्नीट्यूड है. 0.4 J sir. Since this vector is directed along the positive y-axis, so I can write this RAB to be equal to 0.4 J. So once I am taking the cross product, I am going to write IJK in the first row. The second row would represent the components of R, so it is going to be 0, 0.4, 0. What about the third row? What does it represent? Force. Force. So 150 न्यूटन ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है? So पॉजिटिव के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. So I am going to take it as 0, 0, 150. I hope that this determinant किस तरह मैंने इसकी रोज को फिल किया है, यार को क्लियर है? Yes sir. अच्छा, अब इसमें I को जब मैं करूंगा तो I के साथ क्या आएगा? 0.4 into 150, ऐसा ही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, सो अगर मैं J और K की बात करूं तो वो दोनों जीरो होंगे बिकॉज ऑफ these two zeros here. So once I am going to solve it, it would comes out to be 60I. So this is going to be the moment produced by this 150 Newton force couple acting between points A and B. Now let us suppose कि आप इस RAB के बजाय आप RBA का इस्तेमाल कर रहे होते, यानी आप चाहते तो आप M1 जो है वो RBA क्रॉस माइनस F से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे. अगर आप उस सूरत में कैलकुलेट करते तो अगेन द फर्स्ट रो वुड रिप्रेजेंट IJK, यानी आप चाहते तो इस डायरेक्शन में मोमेंट कैलकुलेट कर सकते थे R क्रॉस F लेके. RBA उस सूरत में क्या हो जाता? सब -0.4. तो 0 minus 0.4 0. What about force F? ये अब क्या हो जाती है? -150. 0 0 minus 150. So once you expand it, again you are going to get the same 60I. So it does not depend कि आप किस डायरेक्शन में R को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जिस डायरेक्शन में आप R ले रहे हैं उसी से आगे आप F का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. ये नहीं हो सकता कि आप R ये वाला ले लें और इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस फोर्स के साथ कर रहे हो. सो R से F की तरफ आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लेना होता है यूजिंग इन R क्रॉस F वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. चलें, so we have calculated the couple moment due to this first couple 150 Newton वाला जो था. Now moving on to the next couple which is 125 Newton force couple.
इसके लिए मैं किस डायरेक्शन में R क्रॉस F लूंगा, कोई आइडिया, या किस डायरेक्शन में मुझे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा? कौन से लिख ली सर? अगर मैं R जो है वो डिफाइन कर लूं RDC, तो उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा इस फोर्स के साथ, विच इज दिस पर्टिकुलर फोर्स। सो RDC क्रॉस F के साथ मैं कपल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। ऑल्टरनेटली मैं ये भी कर सकता हूं कि इसको RCD वेक्टर ले लूं और फिर इस फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं। दोनों चॉइसेस मेरे पास हैं। आई कैन टेक एनी वन ऑफ दीज notation in order to find out the couple moment. Okay, now let us suppose कि मैं RDC के साथ इसको solve कर रहा हूँ. So what is going to be this position vector RDC? Sir, 0.3 I. So since this vector is directed towards the positive x-axis and it has a magnitude of 0.3, so I can write this as 0.3 I. Okay, what about this 125 Newton force? इसको मैं कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ। सो ये फोर्स किस प्लेन में एक्ट करती है? Sir, 125 3/5. तो इसको जज करने के लिए अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं फ्रॉम दीज एरोज जो कि मैंने बनाए, इसका फ्रंट व्यू किस तरह बना है कि आपके पास ये वाई प्लेन है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टेड विद इन दिस वाई जी प्लेन, और जो स्मॉलर ट्राइंगल आपको गिवन है वो आपको गिवन है 3, 4 एंड 5। सो इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो 125 3/5, और z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो 125 4/5 बनेगा। ऐसे ही है। अच्छा, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Sir, पॉजिटिव positive. सर। z कंपोनेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। z पॉजिटिव कैसे होगा? आप देखें ना, नेगेटिव को तो नीचे की तरफ है सर, नीचे की। हाँ नेगेटिव होगा। सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू गेट दिस फोर्स F टू बी इक्वल टू 125 3/5 J, जो कि आपके पास बन जाएगा 125 × 0.6। ये आपके पास सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूँ, लेट मी करेक्ट। जो y का कंपोनेंट में 4 नहीं है जी, y कॉलम। थोड़ा सा मैंने वो गलत लिख दिया था, ट्राइंगल गलत देखा था। तो ट्राइंगल यहाँ जो मैंने ये बनाया है वो थोड़ा सा करेक्ट कर लें। यहाँ लिखते हुए मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बेसिकली जो y के साथ है वो आपके पास 4 है, और ये 3 था और ये 5 था। तो आपके पास उसी हिसाब से 4/5 और 3/5 ये आ जाएगा। सो 125 × 0.8 अगर हम करें तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। सो 100 J आपके पास y कंपोनेंट आ गया, माइनस 75 K आपके पास जो है वो z कंपोनेंट आ जाएगा। आई होप कि ये मिस्टेक जो है वो हर एक को समझ आ गई होगी जो मुझसे हो गई थी। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Okay, now this couple moment M2 should be equal to RDC cross F. So आप वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें IJK आपके पास कार्टेशियन वेक्टर आ जाएंगे। RDC जिस तरह अभी हमने कहा 0.3 I है तो 0.300 हो जाएगा। इसी तरह 0, 100 और -75 हो जाएगा। So once you expand this determinant, आपके पास जो है वो इस सेकंड कपल की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो आ जाएगा। मसलन अगर मैं I की बात करूं तो मेरे पास 0 आएगा, J की बात करूं तो क्या आना चाहिए? एक्सपेंड कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को जी। 0.3 × -75। यस सर। So it is going to be -22.5 आ गया। इसी तरह अगर मैं K की बात करूं तो K की 0.3 × 100 which is 30. So what should be the resultant couple MR? It should be the vector sum of M1 and M2. So आपके पास resultant couple आ जाएगा 60I plus 22.5 J plus 30 K. Is it clear to all of you? कोई point Yes, जो sir. आपको ना क्लियर हुआ हो काइंडली पूछ सकते हैं अभी।
सही है सर, इसकी जो डायरेक्शन होगी सर सेकंड कपल की सर, वो सर कपल की डायरेक्शन मतलब या सर सेकंड वाले की सर। देखिए आपके पास ये जो सेकंड कपल एक्ट कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये आपका जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो आपके पास इसका जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो जे और के, दो कंपोनेंट्स आएंगे। यस सर। ठीक है, तो जे और के दो कंपोनेंट्स आपके आ रहे हैं। डायरेक्शन जज करना, देखें इसकी डायरेक्शन जज करना तो बहुत आसान है, जो पहला कपल था। वजह क्या है कि आपके पास ये जो प्लेन बन रहा है वो आपके पास ये वाला प्लेन बन रहा है, तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर आपकी जेड एक्सिस है, तो आपके पास ये कपल जो है मोमेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया था। लेकिन ये वाला कपल चूंकि एंगल पे एक्ट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर होगी, सही तो सर। आपके पास वाई और जी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया है ये हर एक के समझ आ गया है या नहीं? अगर आप चाहते तो इसमें ये सेकंड 125 न्यूटन वाली फोर्स जो शो की गई है उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में फिर आपको RCD डिफाइन करना पड़ता जो कि -0.3 आई हो जाता, और ये 125 न्यूटन की जो फोर्स है उसको आप इस स्मॉलर ट्राइंगल के साथ रिजॉल्व कर सकते थे इनटू द वाई एंड जे कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई चीज़ जो ना समझ आई हो इस एग्जाम्पल में वो आप पूछ सकते हैं अभी, so that we can move on to the exercise problems.